अच्छा, तो यहाँ तक देखें जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ये वाले, तो ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी प्लॉट दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट नाउ using this equation, this non-linear equation, we can plot the transfer curve or transfer characteristics for a given E MOSFET. For N-channel E MOSFET, VGS is positive, and for P-channel E MOSFET, VGS is negative. Now, with the help of this nonlinear mathematical expression, we can also plot the transfer characteristics for N-channel E MOSFET. लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, आपको कौन सी वैल्यू का पता होना चाहिए? उस इक्वेशन में आपको किन दो पैरामीटर का पता होना चाहिए? बीटी और के की। कौन सी की? के की और वीटी की. We should know the value of K and Vt, then we can easily plot the transfer characteristics by putting the value of VGS, and then we get the value of ID and so on. So for this device, the K value of this one and the Vt is given by this value, and then this is P-channel E-type MOSFET. What's the difference between two? The materials are reversed, and the direction of currents are reversed, and the polarities of the voltages are reversed. So now, yes, P-channel E MOSFET device, the channel is P-type, and the substrate is N-type. And if you look at the characteristics, so the characteristics of E MOSFET, P-channel E MOSFET is the mirror image of those of N-channel E MOSFET. Yes, sir. So the enhancement region for N-channel is on the right side, and for P-channel E MOSFET, the enhancement region is for the negative values of VGS on the left side. So the region of positive values of VGS corresponds to enhancement region for N-channel, and the region of negative VGS values or negative gate values corresponds to enhancement region. So the region of negative values, enhancement region for P-channel E MOSFET, and the region of positive gate values corresponds to enhancement region for N-channel E MOSFET. अभी यहाँ पर भी देख लें, VT is negative, VGS is negative, VGS, look at the negative sign for P-channel E MOSFET. This is the symbolic representation. Now between drain and source, there is a broken line. So this broken line shows that physically channel doesn't exist. अगर मैं इसको सॉलिड बना दूं ना, ये देखें सर, तो फिर आपके पास ए डी MOSFET बन जाएगा. And the gap is the same because silicon dioxide layer is present in both cases. But this broken line corresponds to what? This broken line corresponds to insulation. Sir, no channel physical exists. Yes, sir. The broken line corresponds to no physical channel. Non-existence of channel between drain and source terminal. And the arrow is always pointing from P to N, and the arrow is always on the substrate terminal. So the arrow is always pointing from P to N, so it means this is N-channel E MOSFET device. The substrate is P, the channel is N. Similarly, look at the P-channel E MOSFET. The arrow is always on substrate. The arrow is always pointing from P to N, so the substrate is N and the channel is P. It means that the device is available in 4 terminals. But in case of 3 terminals, substrate and source are connected together internally. ये जो है ना आपके पास ये different है. Any question between the symbolic representation of D MOSFET and E MOSFET?
Any question, please? सर कोई नहीं है सर, काफी है आज की। नो हाँ, सर। क्लियर? सर बहुत पढ़ लिया। बस इट्स ये, एनफ टुडे। बस सिर्फ ये जो है ना देखें, थोड़ा सा बस एक आखिरी टॉपिक रह गया, वो मासफेट की, यानी मासफेट जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है। इसकी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, इसको हमने प्रोटेक्ट करना होता है हर हालत में। इसको हमने फंक्शन करना नहीं होता, स्टैटिक चार्जेस से उसको आपने उसको प्रोटेक्ट करना यस सर। होगा। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, अगर एक मरतबा वो पंक्चर हो जाए तो फिर तो वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है यस ना? सर। तो हम नहीं चाहते कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो है वो डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज यस सर। को अवॉइड करने के लिए उसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जो जीनो डायोड प्रोटेक्शन होगा। हाँ, तो इसमें शॉर्ट जो है ना, सर्किट। शॉर्ट सर्किट। हाँ, यस सर। तो हम इस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो अभी आते हैं। लेकिन पहले इधर एक एग्जाम्पल है, उसमें नहीं यहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि ये 11th एडिशन है ये वाला। ये इक्वेशन तरह देखने, यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड बाय द manufacturer of the device as shown in figure 4.0, average threshold voltage VGS is equal to 3 volt। अच्छा, इसको VGS-TH से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने तो VT पढ़ा है ना स्पेसिफिकेशन शीट में, ये VGS-TH, जिस तरह VGS ऑफ लिखा हुआ था VP के लिए, यहाँ पर VGS-TH लिखा हुआ है। अभी ये देखें, ये P चैनल है या N चैनल? अगर मैं आपसे पूछ लूँ, दिस इज P चैनल डिवाइस और E चैनल डिवाइस? सर ये एन चैनल है, ये एन पॉजिटिव चैनल है। Because it N is channel. N channel. Why? Because VGS is positive. VGS पॉजिटिव। TH। यस सर। VGS is positive, so the device is N channel E MOSFET device. बाकी IDS ऑन देख लें, VGS ऑन देख लें, सारी वैल्यूज वहां पर गिवन है। ठीक है ना? वो वहां यस पर सर। 6.40 देख लें। इसमें VGS ऑन कहाँ कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसमें ये वैल्यूज फिर आप देख लें। ये है ऊपर, वो ऊपर नीचे नीचे सर गुजर गया। पर मुझे तो देखें यहाँ पर भी है, जिधर भी लिखा हुआ है नीचे है सर, नीचे नीचे। ब्लू हाँ, अच्छा, बॉटम ऑफ स्लाइड। ये है, कहाँ पर लिखा ये हुआ है? ऊपर, फिर ऊपर, ये सर ऊपर। अच्छा, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यस सर। किधर है? अच्छा, ये वाला VDS 10 वोल्ट, ID 10 वोल्ट। अच्छा, VGS थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखें, AVDS ऑन है, ID ऑन भी दिया हुआ है। देखें ID ऑन कितना है, 3 है। करेस्पॉन्डिंगली VGS ऑन, सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें ऑन, सैचुरेशन, ड्रेन करंट, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ठीक है ना? तो ये देखें यहाँ पर Yes, sir. ये वैल्यूज आप उठा के इसमें पुट कर दें। देखें वही है ना, ID ऑन आपको उधर 3 मिली एम्पियर नजर आ रहा था, और VGS ऑन 10 वोल्ट नजर आ रहा था। तो ये सारे वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें एंड यू गेट द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अभी इसको प्लॉट भी तो करना है ना, तो प्लॉट करने के लिए जरूरी क्या है, VT भी गिवन है, के भी गिवन है, VGS की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, और आपको जो है ना यहाँ से, तो इस ग्राफ में तो आपको, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो VGS ऑन इसके अंदर ही मौजूद है। VGS इस प्लॉट के अंदर देखें, 10 वोल्ट के ऊपर जो भी करंट आपको दे रहे हैं, इधर देखें ये ID ऑन है, देखें 3 मिली एम्पियर, इधर देखें 3 मिली एम्पियर, और यहाँ पर आपके पास ये जो है ना 10 वोल्ट। तो ये ID ऑन वैल्यू आप देखें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन वो ट्रांसफर क्या नाम है, उधर जो करेक्टरिस्टिक्स, वो जो स्पेसिफिकेशन डेटा है, डेटा शीट है, उसमें भी आपको ये सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है, एंड इट इज putting the value of VGS, you get the value of ID, and plot connecting these points corresponding to ID and VGS, and you get this transfer curve for the given E-MOSFET, N-channel E-MOSFET device. Clear? यस समझ आ सर। रही है? तो इसमें देखें, इन्होंने VGS की वैल्यू क्या क्या पुट कर दी, 8 वोल्ट उन्होंने पुट कर दी, फिर 10 वोल्ट डाल दी, फिर 12 वोल्ट डाल दी, 14 वोल्ट एंड सो ऑन, और करस्पॉन्डिंग ID की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.53, 4.94, 7.3 मिली एम्पेयर एंड सो ऑन। लेकिन VT जो है ना, आपने देखें VT की वैल्यू जो भी आपकी देखें, VT इज इक्वल टू 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, जो भी है, VT इज इक्वल टू 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट से आप स्टार्ट ले लें। क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपके पास, नॉन लीनियर इक्वेशन, उसके लिए कंडीशन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज एप्लीकेबल, VGS शुड बी ग्रेटर देन VT, VGS should be greater than VT. Under that condition, this equation is applicable. अगर VGS VT से कम हो
तो फिर आप इस इक्वेशन पे आप ये जो है ना ये इस इक्वेशन को आप अप्लाई मतलब एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, मॉसफेट एनलिंग, मॉसफेट को आप किस तरह एनलिंग कर सकते हैं? तो बीजेटी जीएफएट में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, खासकर ये जो मॉसफेट है हमारे पास इसको आपने प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्शन तो एक तो ये है कि ये जो सारे टर्मिनल्स हैं, ड्रेन, गेट, सोर्स, इनको आपस में शॉर्ट कर दें, इनको एल्यूमिनियम फॉइल में क्लोज कर दें, इनको शॉर्ट कर दें, तो फिर से ये प्रोटेक्शन हो जाएगी। या इसको जीनर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें। क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें? जीनर डायोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें, तो इससे जो है ना ये स्टेटेड जीनर प्रोटेक्टेड मॉसफेट, इसको कहते हैं जीनर प्रोटेक्टेड मॉसफेट। और ये देख लें, इसकी वजह से जो है आपके पास जो स्टैटिक चार्जेस है, बाकी आप इसको अगर आप पढ़ भी सकते हैं उसको रीड कर दें, तो इससे इसको जो है ना स्टैटिक चार्जेस से ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, वो पंक्चर नहीं होगा। और वो जो है ना अपना जो जिस मकसद के लिए बनाया गया है ताकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई हो, तो फिर वो जो है ना अपना फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज इट विल नॉट प्रोवाइड इट्स द फंक्शन in the form of the presence of silicon dioxide layer. So to avoid the puncturing of silicon dioxide layer, we can either short circuited all terminals with the help of aluminum foil or something like this, or we can provide zener protection. तो इसको अगर आप जल्दी जल्दी रीड कर दें, फिर जो है ना लेक्चर में जो है वाइंड अप करता हूँ। ये हम खुद रीड कर लेंगे। आपको समझ आ गई ना आपको कहानी की? ये देखें Yes, यहाँ sir. पर ये देखें यहाँ पर लिखा है यस सर। फॉइल लिखा हुआ है या रिंग जो भी है उसको रिंग कर दें। कंडक्शन आपने जो है ना इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को आपने प्रोटेक्ट करना होगा हर हालत में, जिस तरह भी प्रोटेक्ट करना चाहें। जीनर प्रोटेक्शन दे दें या इस इनके पिंस को एल्यूमिनियम फॉइल में या रिंग फॉर्म में, रिंग के इन तीनों टर्मिनल को आप जो है ना शॉर्ट सर्किट कर दें ताकि इसकी जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, थैंक यू। So that was the end of today's lecture, and then we will see later. Thank you very much. सर अगर ये वाला बुक आप गूगल क्लासरूम में दे दे तो अच्छा हो। बुक्स सबका थे, किस बुक का? ये बुक अवेलेबल ये है बुक नेट के ऊपर, ये बुक अवेलेबल है, कोई मसला नहीं, ये बुक अवेलेबल है। तो ये सर आप आप शेयर कर Yes, sir. डाउनलोड। आप आराम से देख लें यार, पूरा नेट के गूगल के ऊपर आप दे दें, पूरा अवेलेबल है, ये किताब अवेलेबल है। क्योंकि बात चीज़ें अगर आप ऑनलाइन कर अवेलेबल करें तो फिर वो जो है ना वायलेशन में आ जाती हैं। ये चीज़ ज़रा नोट कर लें, ये चीज़ भी आपने देखनी होगी ना। ये ठीक सर है आप ना? शेयर करेंगे वायलेशन में आती है तो हम खुद डाउनलोड करेंगे। तो आप डाउनलोड करें, आपके पास अवेलेबल होगा, आपके पास लैपटॉप में यस अवेलेबल सर, होगा। यस सर। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, ये बुक अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप दे दें ये वाला बायो स्ट्रीट वाला 11th एडिशन। इवन इसका सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है, सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है और साथ ही बुक भी अवेलेबल है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये सर ने भी अपलोड की थी।